प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। आइए हम सब प्रभु की आराधना में उसके गीत गाएं। गीत नंबर 404, भूले और भटके थे हम। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है कहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता तू चल। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता तू चल। पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुझे। भूले हम भटके थे हम जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। जीवन की रोटी है वो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा। भूले हम भटके थे हम जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले हम भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। Praise the Lord. Let us read from the scripture of Psalm 53, verses from 1 to 6. The fool hath said in his heart, there is no God. Corrupt are they, and have done abominable iniquity. There is none that doeth good. God, look down from heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand, that did seek God. Every one of them is gone back. They are altogether become filthy. There is none that doeth good, no, not one. Have the workers of iniquity no knowledge, who eat up my people as they eat bread? They have not called upon God. They were they in great fear. When no fear was for God, hath scattered the bones of him that encampeth against thee. Thou hast put them to shame, because God had despised them. O that the salvation of Israel were come out of Zion. When God bringeth back the captivity of his people, Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad. This is the word of God. May God bless this, the reading of the scripture of Psalm. Amen. Let us understand the word of God by the anointed pastor, Pastor Anurag. Praise the Lord, everyone. Greetings to all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Today I speak in Hindi because I have to continue where I left last Sunday regarding the deadliest sixth seal and what is inside that thing. And this message which I will be giving in Hindi, in later days I shall give in English.
to give you a nice, comfortable message, that I want to tell you that I have written a book in the book on the book of Revelation, and it is in English, and in few days I shall be publishing it, and those who are interested may please comment that they want a copy of that thing. And what is the main thing, that the songs which are sung over here and the psalms which are read over here are sung and read by those people who have the belief that there is a single person God, and that is a blessing to you. So you all should have this thing, that you all are having a nice song, and this song you can hear in your houses. So to begin with, I'll begin with the message in Hindi and we'll turn where we left it. आइए हम लोग वचन में से पढ़ेंगे कि जहाँ मैंने पिछले बार छोड़ दिया था, आज उसको हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। पिछले संडे मैंने बताया कि किस तरीके से छठवीं मोहर जो है वो बहुत ही क़यामत की रात है हम सब के लिए, और खुदावन ने एक बंदे को पहले भेजा, विलियम मैरियन ब्रैनम, जिसके ज़रिए से सारे संदेश के ज़रिए से बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, सिंगल पर्सन गॉड के इसमें। वैसे ही इतनी भयानक रात आने वाली है, समय आने वाला है कि ये जो छठवीं मोहर है, ये 7 त्यूरियों के साथ में इसका पनिशमेंट है। उसके बाद 7 प्लेग्स आके उसका पनिशमेंट देंगे। उसके बाद में खुदा के 7 क्रोध के प्याले, ये सारे छठवीं मोहर के अंदर में। लेकिन छठवीं मोहर के होते होते कुछ ऐसी बात होने वाली है कि खुदावन ने एक दूसरे बंदे को भी खुदावन ने इस दुनिया में भेजा है, ताकि इसको संदेश को आखिरी बार फिर से सुनाया जाए, जिसको कहा जाता है कि एंड द गॉस्पल, एवरलास्टिंग गॉस्पल विल बी प्रीच्ड ऑन दिस अर्थ। उसके बाद क्या होता है कि एक और तीसरा बंदा भी है, जिसके बारे में अभी हमें मालूमात इसकी नहीं है, लेकिन वचन में लिखा है तो हमें मानना है। ये अपने समय पे आएगा, खुदावन उसको अपने आप ही रिवील कराएगा, या वो अपने आप को रिवील कराएगा कि खुदावन, जैसे मुझे बताया गया है कि आज से 25 साल पहले मुझे भी नहीं ऑर्डिनेशन हुआ था, पिलर ऑफ फायर था, लेकिन इतनी बड़ी मिनिस्ट्री के साथ में खुदावन मुझे ब्लेस करेगा और कहेगा कि जो वचन में लिखा है वो लाइव है। हम आपको क्या संदेश दे रहे हैं? लाइव। और जो अनदर एंजल है वो लाइव है, और वो प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में दूसरी आयत में इसका जिक्र है, फिर इसका 10वीं आयत में भी इसका जिक्र है, इसका 14th आयत में भी इसका जिक्र है, और आखिर में उसका संदेश 18वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में भी उसका जिक्र है। धीरे धीरे आपको समझाएंगे। लेकिन जो बुक मैंने लिखी है, जिसके अंदर में इंटरप्रिटेशन ऑफ द बुक ऑफ रेवलेशन, ऑल 22 चैप्टर्स आपको एक साथ मिल जाएगा। अब यहाँ से इतना 1 घंटे में आपको पूरा कवर नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसके लिए टुकड़े टुकड़े में आपको मेरे संदेश मिले। जो मेरे संदेश के साथ में जुड़े हैं, कृपया करके इसको लाइक करना ना भूले, दूसरी बात इसको शेयर करना ना भूले, तीसरी बात है इसको सब्सक्राइब करके रख दीजिए जो नए लोग हैं उनको, क्योंकि इस बंदे के अलावा, जैसे कि ब्रैनम के बंदा जो था खुदावन का, उसको जिन जिन ने संदेश दिए, अब वो सारे बचे, ठीक है ना। और अब जो जीवित है, अब इनके लिए पवित्र आत्मा खुदावन ने इस अनदर एंजल में दिया। तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता, आपको यकीन करना है कि ऐसा बाइबल में लिखा है और ऐसा आपके सामने में हो रहा है, और आपको विश्वास करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं सुपरनैचुरल साइंस के साथ में इसको संबोधित किया है। ये आपको विश्वास करना है। तो रिकैप करते हैं। रिकैप के अंदर में ये है कि हमने 4थे अध्याय के अंदर में, अब पूरा मैं संदेश प्रकाशित वाक्य में दे रहा हूँ,
बुक प्रकाशित वाक्य के ऊपर में मैंने बना दी है, तैयार हो चुकी है। उसका एडिशन चालू है और उसको किस तरीके से पब्लिश करना चाहिए और कैसा इसको क्या करना चाहिए वो सब देखेंगे। प्रिंटिंग प्रेस में देना है, सब करना है। तो वो सब होने के बाद में फिर कोलोसियन की पुस्तक के ऊपर में जिसमें वन गॉड का जिक्र है वो आपको बताना है। उसके बाद में इब्रानियों की किताब जो वन गॉड है, फिर यूहन्ना की किताब, ऐसे किताबें बना बना के आप लोगों के सामने पेश की जाए, क्योंकि ये अंतिम समय है और यहाँ पे आपको विश्वास कर लेना है कि एक ही खुदावन है। मैंने बहुत भली भांति अच्छी तरीके से आपको समझाया कि वन सिंगल पर्सन गॉड कैसे है। और ये तो मालूम है कि बपतिस्मा भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आपको लेना। ये दो अहम बातें हैं जो 99.009 क्रिश्चियनिटी है इस चीज़ को मानती है, ट्रिनिटी को और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम के बपतिस्मा। ये सारों को जो है बड़ा आफत और बड़ी गंभीर परिस्थिति में ये लोग पड़े हैं और हमारा काम है कि उनको वहाँ से निकालना, क्योंकि छुटकारा निकट है और पनिशमेंट जो है वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही परेशानदायक चीज़ होने वाली है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसा लिखा है। तो चौथे अध्याय के अंदर में हमने देखा कि खुदावन ने यूहन्ना को ऊपर उठाया, बुलाया। चौथा अध्याय पूरा दृश्य कौन देख रहा है अनिल? यूहन्ना। और किसने उसको ऊपर बुलाया? कैसा लिखा है? और उसने उसको ऊपर बुलाया। इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तूरी की शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था। पहली तूरी यानी पहला तो खुदावन ही बात करेगा ना उससे, तो जिससे पहले वो बात कर रहा था वो फिर से उससे बात कर रहा है। वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा। समझ में आएगा कौन कौन बात कर रहा है यहाँ पे? आपको दिलासा दिलाना है कि ये जो जिससे बात हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, जिससे वार्तालाप हो रही है, ये है खुदावन और यूहन्ना। खुदा उसको ऊपर वो पूरा चौथा और पांचवा दृश्य आसमानी दृश्य है जिसको यूहन्ना देख रहा है। और दिखा कौन रहा है? खुदावन प्रभु यीशु। पांचवा अध्याय भी। उसके बाद में जब मोहरें खुलती है छठवें अध्याय के अंदर में, तब यही दृश्य को खुदावन प्रभु यीशु मसीह अपने दो अनॉइंटेड पर्सन, पहला है हमारा विलियम ब्रैनम, इसके अंदर में से उसकी मुंह की आवाज़ जो है वो खुदावन की आवाज़ है। तो उन्होंने फिर सारे संदेश को, सारे मोहरों को हमारे बीच में खोल के रखा। अब ये अंतिम छोर के अंदर में कुछ बातें जो रह गई है उसको भली भांति मैं आपको, ये जो अनदर एंजल ये आपको बताएगा, क्योंकि ये जो पुस्तक है इसको पहला पुल कौन है? विलियम मैरियन ब्रैनम। अब हमने पहला पुल ये देखे कि गरजन है, आवाज़ है और तुरी फूकी जाएगी, वो तो है ही है ना। लेकिन प्रकाशित वाक्य जो पे जब हम आ गए तो उसके अंदर में थर्ड पुल कौन है? पहला पुल है, पहला एंजल का सातवां एंजल जो प्रकाशित वाक्य के पूरा खुलासा यूहन्ना को दिखा रहा है। दूसरा है अनदर एंजल, सेकंड पुल। और तीसरा है इमेज टू द बीस्ट। जब तैयारी हो जाएगी ना, जब सब रिलीजन एक हो जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह का ये लोग सामना करेंगे, तब तीसरा एंजल, उसके बारे में अभी हमें ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन रहते रहते खुदावन उसको भी हमारे सामने प्रकट करा देगा जैसे सेकेंड एंजल को प्रकट कराया। अब ये मेरे लिए एक बहुत दुविधा वाली बात हो गया, ने कठिन बात हो गई कि अचानक यही साल फरवरी महीने के अंदर में खुदावन ने कहा कि तू एज ए अनदर एंजल करके तेरे को प्रचार करना है। तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि ये बातें मेरे बारे में लिखी है। आज तक मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं और ना मैंने कभी ऐसा अपने में आने दिया कि ये मैं हो सकता हूँ करके। मैं हमेशा इसको ब्रदर ब्रैनम के तौर पे बताया करता था। ये ब्रदर ब्रैनम तो जो है वो सेवेंथ एंजल है, अनदर एंजल जो है 7 एंजल्स के संदेश देने के बाद में एक और है अनदर एंजल और फिर एक थर्ड एंजल है। तो पहला पुल क्या हो गया ब्रैनम का, सेकंड पुल क्या है अभी जो चालू है,
बाइबल लाइव है, ऐसा नहीं 2000 साल पहले लिखी है तो अभी ये पूरा नहीं हो रहा है। जो 2000 साल पहले वो हमारी आंखों के सामने अभी पूरा हो रहा है। फिर अभी जो ये सब जनजाति एक होंगे और ये सिंगल गॉड के खिलाफ होंगे, क्योंकि ये कैथलिक हो गया, प्रोटेस्टेंट चर्च है, ये अभी भी ट्रिनिटी और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के अंदर में अभी भी फंसे हुए हैं। जो क्या है, प्लेग है। प्लेग मतलब क्या होता है? मृत्यु, मरी, एक टाइप की मरी है कि ये ख़त्म कर देगी। वहाँ से हमको जल्दी जल्दी निकलना है बाहर, निकलोगे तो आप बचेंगे। दूसरा, खुदा का क्रोध का प्याला है ये दो चीज़ों से आपका। और तीसरी बात यह है कि आपको खुदा के अनॉइंटेड को पहचानना है। वचन में लिखा है कि उसने भेजा, मैंने 7वें एंजल को भेजा, और 7वां एंजल बता रहा है, और यूहन्ना भी उसको सर्टिफाइड करके लिख रहा है। अनदर एंजल भी है, वचन में लिखा है, वो भी मानना है, और यूहन्ना ने उसके बारे में भी लिखा। थर्ड एंजल भी है, उसका ज़्यादा लिखा नहीं है, लेकिन 14 चैप्टर और 90 आयत से उसका जिक्र है। और उसके बाद में एकदम हार्वेस्ट है, और सब खलियान पक चुके हैं और हसूला रखने को है। ठीक है ना। अब हम लोग, मैं आपको ये चिताना चाहता हूँ कि छठवीं मोहर से बच के रहना। खतरनाक मोहर है ये, क्योंकि इसके अंदर में सारे 7 तूरियाँ जो है ना, जो 7 एंजल्स ने जो संदेश दे दिया अपने अपने समय में, उसका असर इन तूरियों में दिखेगा कि जिन जिन लोगों ने इनको माना नहीं, 7 एंजल को नहीं माना, 7वें दूत को हमारे समय के अंदर में, और अनदर एंजल और थर्ड एंजल को अगर मानोगे तो ही बचोगे। सेकंड और थर्ड एंजल का काम कहाँ पे था? सोने की वेदी पे, है ना, क्योंकि वो याजक का काम करते हैं। 7 एंजल का क्या काम है? अपने अपने समय में, और वो कहाँ पे रहते थे वो? क्योंकि खुदावन के मंदिर के अंदर में सिर्फ एक ही लाइट थी, और वो लाइट देने वाला मिनौरा था। मिनौरा मतलब 7, हिब्रू में मिनौरा बोलते हो 7 दीवट को, है ना। तो मंदिर के अंदर में सिर्फ एक ही लाइट थी, और वो लाइट कौन सी थी? ये 7 कैंडल्स की लाइट थी। बाकी दूसरी लाइट वहाँ पे प्रवेश नहीं करती थी। कहने का मतलब क्या है? दुनिया के अंदर में ये 7 एंजल का ही मैसेज काम में आएगा। तो 7वां दूत हमारा जो है, ये सारे एंजल्स को कवर करता है, क्योंकि 7वीं मोहर खुलेगी, जिसको ब्रदर ब्रैनम ने खोला, उसने सारे चीज़ों को क्या किया? उजागर किया। और उसी के पास में 7 क्रोध के प्याले, मरी के 7 मरी इसके हाथ में, 7, क्योंकि इसने खोला, विलियम एरो ने अपने हाथ में, क्योंकि 7वीं मोहर खुलेगी तो 6वीं, जैसे एक मोहर है, दूसरी है, तीसरी, ऐसा करके बंद हो गई ना, फिर आखिरी में 7वीं लगी। 7वीं खुलेगी तो फिर खुलते जाएंगी। तो फिर पूरा भार किसके ऊपर में आ गया? विलियम मैरियन। तो फिर ये अनदर एंजल का काम क्या है? ये वेदी के ऊपर का काम है। सोने की वेदी है, पीतल की वेदी है, समझा रहा हूँ ना मैं आपको। पीतल की वेदी, उसके पैर काय के? पीतल के, प्रभु यीशु मसीह। क्यों पीतल के दिखाया? क्योंकि पाप को जला के खत्म कर देने वाला खुदावन है वो, इसके लिए पीतल की वेदी बनाई। पीतल की वेदी वो होती थी जहाँ पे पाप हमेशा के लिए, फिर वो अंदर घुसता है ना। जैसे ब्रदर ब्रैनम के लिए खुदावन ने पर्दे को हटाया और अंदर जा रहा है, वैसा ही ये याजक क्या कर रहा है? जो प्रभु यीशु मसीह ने गोलगोथा पहाड़ पे 2000 साल पहले कर दिया, वही लहू को यहाँ पे छिड़काया जाता था। पुराने समय में अंदर में बड़ा जो हारून और इलाइजर जैसे बड़े बड़े जो याजक हुआ करते थे, वो 7 बार क्या करते थे? खून को, तो लाल कलोर है, लाल कलोर का लहू क्या करता था? इस पर्दे को खोलने का रास्ता बनाती। इसीलिए खुदावन ने कहा, यूहन्ना का तू ऊपर आ जा, 4थे अध्याय में मैं तेरे को पूरा दृश्य दिखाता हूँ। क्यों?
क्योंकि लहू लगने से पहले स्वर्ग नहीं जा सकता कोई। यहाँ लहू लगाना बहुत जरूरी होता है। तो लाल कलोर क्या हो, बाहर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, वैसा ही लाल कलोर को भी तंबू के बाहर सीधे हाथ पे जलाया जाता था, काटा जाता था, और उसका सारा चूस यहाँ पे जलाया जाता था पित्तल की वेदी में। क्यों अनिल? गोबर सहित, अतड़ियाँ फतड़ियाँ सब सहित। क्यों? हाँ, आमीन। पूर्णता से पाप खत्म। हमारे को विश्वास करना है, जो खुदावन ने कर दिया तो अनदर एंजल क्या करेगा, उस बात को दोहराएगा। उसको हारून की सीलिंग होना है, जैसे हारून को खुदावन ने आशीष दी थी, वैसे इसके पास में भी ब्लेसिंग्स होना, अनॉइंटिंग होना जरूरी है। ठीक है। फिर क्या होता है कि पाप बलि भी थी। पाप बलि किसके लिए थी? पाप बलि को पहले बैल, ये लकड़े का मतलब है बैल, और ये लकड़ा मतलब है ना, और ये है मिलाप वाला तंबू, यानी इंग्लिश में टैबरनेकल ऑफ दी कांग्रीगेशन। ये पाप से भरा है, पुराना नियम का तंबू है। ये पाप को ख़त्म करने के लिए जब लाल कलोर हो गई, ठीक है, तो उस लाल कलोर का इफेक्ट फिर काय में आता है। फिर याजक क्या करता है कि अपना बैल काटता है, जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। ये डंडा जो ना एक सिंगल पोल के ऊपर में सांप को लटकाया गया था। तो पाप क्या हो गया? सांप। और सांप कैसे बना हो पाप? जब मूसा को उन्होंने बलवा किया और बड़बड़ाया किसके सामने? खुदावन के सामने। तो पाप क्या हो गया? बड़बड़ाना पाप हुआ क्या? क्या पाप हुआ? उन्होंने खुदावन के आश्चर्य कर्म के ऊपर में विश्वास नहीं किया, और वो अविश्वास उनके लिए पाप बन गया। जैसे हवा ने, खुदावन ने कहा ना नहीं खाना, और शैतान ने उसको बरखलाया। खुदा की बात पे उसने विश्वास, और वही अविश्वास उसके लिए जुर्म ठहरा, और सारी दुनिया के अंदर में वो। तो इसी के लिए अब क्या हो गया कि सब मरते जा रहे हैं। तो मूसा के पास में आए, मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की, और फिर खुदावन ने कहा कि अच्छा ठीक है, इनको बोल कि तुम बचोगे और मैं तुमको बचाऊंगा। और कैसा बचाऊंगा? कि तू लकड़े के खंबे पे। कौन से खंबे पे? क्योंकि जो पहले आदन की वाटिका में दो झाड़ थे, एक खुदावन का झाड़ था और एक, ठीक है ना। अब ये जो लकड़ा है, इसके ऊपर में तू पीतल का, तो पीतल का सांप क्या हो गया? कैसे? अब इन्होंने पाप किया तो क्या क्या हो रहे थे? लोग मरते जा रहे थे। उन्होंने कहा प्रार्थना कर। खुदा ने, मूसा ने कहा खुदा से, तो खुदा ने बोला पीतल का सांप बना, जो देखेगा तो वो इसका। अब इसका डिस्क्रिप्शन ने दिया है। डिस्क्रिप्शन ये है, उसका मतलब ये है कि तुमने पाप किया अविश्वास रखते हुए। खुदावन पे विश्वास, जिन्होंने मन्ना खिलाया और तुमको मांस खिलाया और कपड़े भी दिए, और मानो को कभी परेशानी नहीं हुआ, आग का खंभा धुए, सारे आश्चर्य काम देखने के बाद तुमने उसके ऊपर में अविश्वास जलाया, वो तुम्हारे लिए पाप बना। अब तुम्हारा पाप मैं क्या करता हूँ? इसी के लिए वो पीतल का सांप बना। इसी के लिए दो सिरप जो है, वो जो सिंहासन के ऊपर में भी दो है, यशाया 6 और प्रकाशित वाक्य के अंदर में 4 अध्याय में भी है। और वो जो प्रायश्चित के ढकने के अंदर में जो जो सिरप होते थे, सिरप जिनको 6 पंख होते थे, और बीच में प्रायश्चित का ढकना होता था, वो कौन है? प्रभु यीशु, खुदावन का इमेज, फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएशन, फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेड, और दुनिया की नींव रखने का फ्रॉम दी फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्या होता है अनिल? फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी उसकी एक शुरुआत अल्फा है, ओमेगा, लेकिन उससे भी बड़ा है वो, अल्फा और ओमेगा से भी बड़ा है, क्योंकि अल्फा उसकी शुरुआत हुई। जलता हुआ सिरप का मतलब क्या हो गया? कि पाप को उसने जला के ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। और आग क्यों बंद है? क्योंकि ये पुराना नियम के अंदर में पर्दा है। आग क्यों बंद है? सिरप, दोनों सिरप की आग
और पैर क्यों ढके हुए हैं और दौड़ने के लिए क्यों? क्योंकि पुराना नियम में क्या है, पर्दा है, इसके लिए वो देख नहीं सकते। तो अब उसको खोलता कौन है? 7 बार लहू। तो ये प्रायश्चित के ढकने में क्या था? तो ये करूब ने क्या किया? जो खुदावन का इमेज था, ट्रिनिटी नहीं है यहाँ, यही जो है धुएं के बादल में जो दिखता है वही अपने इमेज को प्रभु यीशु मसीह को बताया, और वही सेरब है, जलता हुआ सेरब, वही फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएशन है, वो यहाँ आता। फिर वो क्या करता है? पुराने नियम को कैसा समाप्त करता है? तो वो कुमारी से जन्म लेता है और फिर मारा जाता है, गाड़ा जाता है, वध किया जाता है। मैंने आपको बताया कि गड़ने से पूरे पाप गड़ गए, और पानी और लहू निकलने से मतलब मृत्यु हो गई। पाप की क्या हो गई? हमेशा के लिए मृत्यु हो गई, ख़त्म हो गई। और तीसरा काम क्या है? हमको उस पर विश्वास करना है। भाला टोपा गया, पानी और लहू लगा, वो ख़त्म हो गया, और उसको गाड़ा गया, और फिर उसको जलाया गया। तीसरी बात क्या है? बुरा ख़त्म कर दिया पीतल की वेदी में। फिर वही लहू यहाँ लगा। फिर ये उसको होली होली बोलता है। किसको? खुदावन को, क्योंकि उसका ऐसा बेटे का रोल कर रहा है। सन एज ए पर्सन नहीं है, वो इज डूइंग द रोल ऑफ द सन। फादर सन का रोल अदा कर रहा है। तो कहने का मतलब ये जो इनविजिबल वर्ल्ड है, इसने ये अपने आप को पिता के रूप में दर्शाता आवाज़ के इसमें, और अपने इमेज के रूप में पुत्र को, और सारी दुनिया को बताने के लिए सिखाने वाला एक पवित्र आत्मा भी। ठीक है, अब ये आपको समझा दिया मैंने। अब 6वीं मोहर के 12वें आयत में आ जाओ। 6वीं मोहर के अंदर में क्या है कि जैसा ही उसने मोहरों को अपने हाथ में लेके खोल दिया, तो उसने 6वीं मोहर के अंदर में क्या है कि 6वें अध्याय के अंदर में, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक को खोला। ठीक है, 7 मोहर से बंद पहले को खोला। ठीक है, पहले को खोलने से क्या हो गया कि उसको सारा चीज़ को दिखना चालू हो गया। लेकिन पढ़ा कैसे? उसने पहले से पढ़ना चालू किया। खोला 7वें से, पढ़ना चालू किया पहले से, क्योंकि पहला अध्याय के अंदर में चार प्राणी जो है, जो यहाँ आमने सामने रहते थे, और ये 4 एंजल जो है खुदा के स्ट्रॉन्ग एंजल है। तो ये 4 बीस्ट, जहाँ पे 7 कलीसिया काल जो है 2000 साल होते आ रहे हैं अभी हमारे को, और 7वां दूत है। तो ये जो है यहाँ पे 4 बीस्ट है, और वो जो 4 घोड़े हैं, जैसे सफ़ेद घोड़ा है, लाल है, काला है और पीला है। और हम लोग अभी इस पीले घोड़े के अंदर में जो मौत और मृत्यु है 99.009 फंसी हुई है क्रिश्चियनिटी। इसी के लिए मुझको ये संदेश देना है, एज ए खुदा का अनॉइंटेड पर्सन जैसे खुदा ने चुना है, तो मुझको किताब भी लिखनी पड़ेगी ताकि दुनिया को कन्फर्मेशन आ जाए। उसके बाद में क्या है कि संदेश तो जा रहा है, और इस संदेश के अंदर में आपने खुदावन ने बहुत सारे आश्चर्यकर्म इसलिए पेश किए ताकि आप लोग इसकी बात सुने। और ये बात क्या हो जाती है? 10 से खुदा का अनॉइंटेड जब भी बोलता है तो क्या बात होती है? 10 से बाहरी को मत देखो। बाहर तो बड़े बड़े चर्च, बड़े बड़े गिरजे, बड़े बड़े सफ़ेद चोगे वाले पास्टर मिलेंगे। कौन सा पास्टर चुनना है? जो अंदर से पवित्र आत्मा से अंदर का प्याला साफ होगा तो बाहर का ऑटोमेटिक। जब तक आपको अंदर का संदेश नहीं सुनाया जाएगा, कौन से अंदर का? पर्दे के प्याले के अंदर, क्योंकि तुम बाहर हो अभी, मौत से गिरे हुए। ये मौत का पर्दा है, अंदर नहीं जाने देता पापियों को। सिर्फ शुद्ध लोग ही वहाँ जा सकते हैं, जो पवित्र आत्मा से शुद्ध किए हुए पहरावा है खुदावन प्रभु यीशु मसीह का। ठीक है, चालू करें अभी। फिर 5वीं मोहर के अंदर में वो जो दुल्हन बचने के बाद में 5वीं मोहर के अंदर में जो यहूदी लोग हैं उनको बचा लेता। ठीक है, अब आ गया फाइनल। तो ये सब स्पिरिचुअल है।
ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग स्पिरिचुअली। ये सारी बातें आत्मिक है, हकीकत में नहीं दिख रही, आत्मिकता से हो रही है। क्योंकि आत्मिकता से आप खत्म हो गए। आत्मिकता से आपको एंट्री मिल सकती क्या? यहाँ पे ट्रिनिटी वालों को किसको एंट्री मिल सकती? जो वन गॉड विश्वास करते, जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, सारे रोल अदा कर रहा है, सारे तीनों गॉड है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा किसके ऊपर में डाले गए? प्रभु यीशु मसीह पे। इनविजिबल से जो दिखने वाला रूप है उसके ऊपर पिता को यही भाया कि उसने सारा कुछ किसको दे दिया, और कहता है कि इसकी तुम इबादत करो। ये जो मर के जी उठा, इस मर के जो जी उठा इसकी इबादत, क्योंकि ये इज योर गॉड। जब वो गद्दी को क्लेम करेगा तो पिता में और उसमें कोई फर्क, जैसे ये इनविजिबल विजिबल हाथ एक ही है। अभी काम आपको यही दिख रहा है, यही चीज़ फिर कहाँ बैठ जाएगा? खुदावन के सिंहासन पे। अब तकलीफ क्या होने वाली है? आप 12वें आयत में आ जाओ। जब उसने छठी मोहर खोली, ये एक ऐसी बात है जो मैं आप लोगों के सामने बताना चाह रहा हूँ भाइयों। बहुत ही कठिन परिस्थिति है ये, आप सबको समझना है और बाहर निकलना है, अपने अपने डिनोमिनेशन से बाहर निकलना है। क्योंकि इसके अंदर में लिखा है कि तुम अपनी खो में मत घुस के बैठो, मेमने से मत डरो। मेमना प्यार करने वाला खुदावन, हम आपको उसका प्यार दर्शा रहे हैं कि अभी उसकी बाहें प्यार से खुली हुई है, ये फैली हुई है उसकी बाहें अभी भी। इतना प्यार किया कि उसने अपनी इकलौते पुत्र की दोनों बाहें खीले से ठोक दी, ताकि जो कुछ उस पर विश्वास करे नाश न हो बल्कि अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। जब उसने छठी मोहर खोली तो एक बड़ा भूकंप, एक सिंगल भूकंप हुआ। भूकंप का मतलब क्या होता है? खुदावन अपनी उपस्थिति दर्शाता है। जब खुदावन मूसा को 10 आज्ञा दे रहा है तो पहाड़ भी बड़े जम से गरजा था, भूकंप के समान। तो भूकंप आजकल क्या है, फटता किसी जगह पे, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से और ऑनलाइन जो संदेश चलते हैं, है ना, उसके ज़रिए से, और ऑफलाइन पेपर के ज़रिए से भी, न्यूज़पेपर के ज़रिए से क्या होता है, पूरे धमाके की बात क्या हो जाती है, पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो धमाके का मतलब ये है कि अब खुदावन के आने का समय आ गया है। छठी मोहर के अंदर में सारी भयानक बातें मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, क्या क्या लिखी है उसके बारे में। और खुदावन के आते आते ही जैसी छठी मोहर के अंदर में सारे घृणित काम करने वालों का सफाया है कि ऐसी मौत है। मैं किताब लिख रहा था तो 19, 20, 21, 22 के अंदर में ऐसी ऐसी कि जलती हुई आग रहेगी और वह आग बुझेगी भी नहीं, और कीड़े भी मरेंगे नहीं, और ऐसी आग में झोंकेगा खुदावन अविश्वासियों को कि वहाँ से फिर वो पहली मृत्यु है और दूसरी मृत्यु क्या हो जाएंगी, क्योंकि हम लोगों को इस पर फिर जाना ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा न्याय जो है अभी हो जाएगा। कैसा न्याय हो जाएगा आप लोगों का? क्योंकि आपने इस पीतल की वेदी पे और इस लहू को और उस सोने की वेदी के अंदर में यहाँ तलक का कि याजक ने अपने आप सबकी प्रार्थनाएं खुदावन के सामने पेश करके रखा दी है, खुदावन के सामने में, है कि नहीं? तो आपके नाम क्या है? लहू से लिखे हुए। कैसे लिखे ने? कैसे क्या? लहू से कैसे लिखे? बिना एंट्री, लहू के एंट्री नहीं है ना, बिना लहू के। आप इस कार्य को मान रहे हैं कि नहीं? और ये कौन सिखा रहा है? याजक सिखा रहा है। 100% आपको लहू के जरिए से अंदर प्राप्ति हो रही है। और ये किसने हटाया? याजक ने, खुदावन ने हटाया।
हम लोग थ्योरी फॉर्म में बता रहे हैं कि खुदावन ने आपके लिए रास्ता बनाया है, क्योंकि स्वर्ग का रास्ता जो है ये बिना अनॉइंटेड के, ये 7 दूत, अनदर एंजल और थर्ड एंजल, इसके अलावा कोई भी संदेश जिसको भी कोई मानेगा स्वर्ग में उसको जगह मिले, कंफर्मेशन है। अगर मैं खुदा का अनॉइंटेड है तो ये कंफर्म्ड बात है। इनके अलावा दूसरे कितने भी अच्छे अच्छे संदेश होंगे सुन लो, अनॉइंटिंग जहाँ है खुदावन उसी को ही नियम बनाएगा आसमान जाने का, रास्ता आपके लिए वही बनेगा, याकूब वंशी वही होंगे, याकूब की सीढ़ी वही होंगी, और वो सीढ़ी सिर्फ एक ही है, और वो एक सीढ़ी कौन है? प्रभु। उसी से हमको आसमान में जाना, बाकी दूसरा कोई रास्ता है नहीं। फर्स्ट पुल, सेकंड पुल और थर्ड पुल, फर्स्ट एंजल, सेकंड एंजल, अनदर एंजल एंड थर्ड एंजल, खत्म। उसके बाद में हार्वेस्ट है और सारी चीज। अब देखो उसके अंदर में क्या लिखा है। भूकंप हो गया, आकाश के तारे और सूर्य कंबल के समान। सूर्य देवता जो है जो क्रिएशन में आता है, चांद जो है वो क्रिएशन में आते हैं, तारे जो है वो क्या क्या आते हैं? क्रिएशन में आते हैं। और लोगों ने इन्हीं को अपने भगवान बना दिए, है ना। तो इनके जो भगवान है, और क्रिश्चियनिटी भी उन्हीं के अंदर में किस तरीके से गिर जाते हैं, घेरे में आ जाते हैं ट्रिनिटी के तौर पे, क्योंकि ट्रिनिटी इज ऑल्सो मैन मेड। दीज थिंग्स आर क्रिएटेड बाय गॉड। सन, चांद और ये सब खुदावन की क्रिएशन में, लोग उसको विश्वास करते। ट्रिनिटी इज ऑल्सो मैन मेड, और लोग उसी को विश्वास करते हैं, त्रिएक देव को। तो क्या है? शैतान है। वो सारों को क्या कर, कंबल के समान काला कर दिया उसने, चांद को लहू बना दिया। अब वो ग्रहण वहन ये सब छोड़ दो, ग्रहण ने लगा है, ये सब चीज़ें है, लेकिन असल बात ये है कि ये जो इनको मानते थे, ग्रहों को और क्रिएशन को, सबको क्या किया उसने? पहले साफ कर दिया। क्योंकि ना तो चांद की, ना कि सूरज की, और ना तो तारों की, किसी की भी ज़रूरत खुदावन के उस पैराडाइज में, क्योंकि खुदावन स्वयं लाइट है। जहाँ सूरज और चांद की और इसकी रोशनी, ना तो मोमबत्ती की भी ज़रूरत नहीं, मोमबत्ती की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदावन स्वयं वहाँ का उजाला है। एक ही टाइप का उजाला चलता था ना, 7 कैंडल का मंदिर के अंदर में, और वो 7 कैंडल कौन है? प्रभु। वो 7 आत्माएं, एक ही पुरुष के अंदर में 7 आत्माएं हैं। जैसे शमसून की एक ही पुरुष था ना, लटे उसको कितनी थी ताकत, उसके अंदर में कितनी थी? 7 आत्माओं की ताकत उसके लिए। ही वॉज अ वेरी पावरफुल मैन। और स्माइट द लैंटर्न मतलब उसके सिरे के ऊपर में मारना और दोनों अलंगों को ढा देना। दोनों अलंग कौन सी है? शमसून ने क्या किया? और पुराने नियम में क्या? स्माइट द लैंटर्न, जो चौखट है ना, चौखट के सिरे पे लाठी मारना और बाजू के इसको हटा। तो लहू लेता और मारा उसने, और उसके स्वर्ग के रास्ता खोल डाला उसने। ऊपर मारना मतलब स्वर्ग के लिए रास्ता खुल गया, और साइड के 2 अलंगों का मतलब पाप बनाना। वो अपने पाप को भी हटाया और विश्वासियों के भी पाप को हटाया। दोनों पाप के डंडे। ये पाप का डंडा नहीं है पीतल का सांप, ये प्रभु यीशु जी जो लटक रहा है वो पाप हमारे लिए पाप बना। तुमको मरना था, तुम्हारे पाप उसने यहीं पीतल की वेदी पे। समझ में आया ना? ये लोग स्वर्ग जाएंगे जिसकी बुद्धि तेजी, इसको कहते हैं बुद्धिमान कुंवारियां। इसको कहते हैं बुद्धिमान कुंवारियां। फिर क्या हो रहा है? आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे कि आंधी के हिचकोले अंजीर के पेड़ के कच्चे फल
गिरते ऐसे सबको क्या कर रहा उसने, गिरा दिया। सारे को क्या किया उसने अनिल, गिरा दिया। कौन सी आयत, 13वीं आयत। एंड द स्टार्स ऑफ हेवन फेल ऑन टू द अर्थ। क्या हो गया, गिर गए। अभी तक था नहीं, अभी खुदावन ने क्या किया, इनको नीचे गिरा दिया। इवन एज द फिग ट्री, जैसे अंजीर के कच्चे फल गिरते हैं और पके फल गिरते हैं, वैसे ही सबको उसने क्या किया, आकाश ऐसा सरक गया जैसे पात्र लपेटने से सरक जाता है। या पात्र का लपेटना मतलब क्या हो गया, आकाश की गंदगी, आकाश में जितने भी देवी देवताओं जो पल रहे थे, जिन्होंने अपना घोंसला बनाया था, जब वो इनविजिबल वर्ल्ड से हकाले गए थे तो इन्होंने अपना अपना स्थान बनाया था। तो नासा साइंटिस्ट बोलते हैं कोई इमेज दिखती है डांस करते हुए कुछ तो भी दृश्य दिखता है वहाँ पे। ये सारों को क्या किया, आसमानी दृश्य जो दिखता है मतलब क्रिएशन में, जो नहीं दिखता इज नॉट एन, इट कम्स अंडर अनक्रिएशन, अनक्रिएटेड गॉड। जो दिखता है वो, तो हम किसके ऊपर पे, जो दिखता है उस पर भी विश्वास करते हैं, और और दोनों एक ही है, दोनों शख्स एक ही व्यक्ति है। ये जो पीछे छुपा हुआ है, इसको हम लोग आपके सामने में उजाला, इसकी ज्योति और इसका उजाले का तत्व यीशु है, पलौठा है, दुनिया का पलौठा। द ब्राइटनेस ऑफ हिज ग्लोरी, इनविजिबल गॉड, सिंगल पर्सन गॉड, इब्रानी 1 के अंदर में लिख रहा है। अब आगे चलते, आकाश ऐसा सरक गया जैसे पात्र लपेटने से। जिसने बनाया दुनिया को, वो उसी के हाथ में है इसको सारे को ठीक करने का काम, है ना, उसी को ठीक कर रहा है वो। और हर एक पहाड़ और टापू अपने स्थान से क्या हो गया, हर एक लाइन के ऊपर में आप संदेश रखो, हर एक लाइन, पहली तुरी, पहला प्लेग, पहला खुदावन के 7 क्रोध के प्याले के ऊपर में बना हुआ है। दूसरी लाइन पढ़ेंगे, दूसरी तुरी, दूसरा क्रोध का प्याला, ऐसा तीसरा, चौथा, ऐसा चलते जाएगा। क्योंकि 6वीं मोहर के अंदर में ही ये सारी तबाहियाँ जो तुरियाँ दे रही हैं और मरी दे रही है और खुदा के क्रोध के प्याले दे रहे हैं, वो 6वीं मोहर के अंदर में ही बंद है। और पहाड़ मतलब क्या हो गया, जहाँ से वो इबादत करता था वो पहाड़, क्योंकि हम देखें ना तुरी फूकी जा रही है दूसरी वाली, तो पहाड़ गिरा ना आसमान से। दूसरी तुरी में क्या है, आसमान से पहाड़, जलता हुआ पहाड़ गिरा पानी में, लोगों के ऊपर में। पानी मतलब लोग, यानी ऐसा पैराबल और सिंबल वे पे लिखा है कि अच्छे से अच्छा साइंटिस्ट, अच्छे से अच्छा ज्ञानी, अच्छे से अच्छा थ्योरी लिखने वाला PhD भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि खुदावन के अनॉइंटेड के अंदर में खुदा ने अलग ही बुद्धि दी है। और ये पूरे AI सबसे ज़्यादा ऊपर का संदेश देगा। ये AI जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और वो आजकल जेमिनी आ गया, ये सब आपको बताते हैं सारी बातें, उससे भी ऊपर का संदेश है ये। क्योंकि आप YouTube में देखेंगे तो दोनों सिरप को प्रभु यीशु मसीह का खिताब नहीं देता है कोई, डरते हैं क्योंकि समझ ही नहीं। और हमने क्यों बता दिया ये बातों को, क्योंकि खुदावन ने बताया है विजन के जरिए से, और दिखाने के बाद में फिर याजक आपको वही विजन आप लोगों के सामने बताता है कि आप ऐसी ऐसी बातों को समझ लो। और हर एक पहाड़ और टापू अपने स्थान से टल गया जब पृथ्वी के राजा, ये कौन लोग हैं, तानू सिस्टर, ये इस पे ज्ञान दो, ये आपको कोई नहीं बताएगा, यूट्यूब में के अंदर में भी नहीं है, और कोई भी तत्व ज्ञानी के पास में ये ज्ञान नहीं है। ये राजा है, क्या है, आ जाओ, उसने लिखा ना, उसके वस्त्र पे क्या लिखा, राजाओं का, और कहाँ पे लिखा, थाई का मतलब क्या है, लड़ाई आती है ना, लड़ाई, जब कुश्ती लड़ते हैं ना, कुश्ती लड़ने के बाद में क्या है कि थाई के अंदर में लिख दिया है कि अब ये राजाओं के जितना भी है समेटना चालू है।
प्रकाशित वाक्य के जो अध्याय है 16 अध्याय आगे के जिब्ये और 20 और 21 के अंदर में भी ये राजाओं को क्या कर रहा है, आर्मागेडन की लड़ाई के अंदर में 16वें अध्याय के अंदर में गैदर करता है। तो ये राजाएं कौन है? ये राजाएं कौन है? पोप और डिनोमिनेशन के झूठे भविष्यवक्ता जो आज भी ट्रिनिटी फॉलो कर रहे हैं। जितने भी ट्रिनिटी फॉलो कर रहे हैं आज उनको निकलना ही है बाहर। आज की तारीख में उनको बाहर निकलना ही है, क्योंकि हर टापू और अपने अपने स्थान से टल गया और पृथ्वी के राजा, राजा का मतलब क्या हो गया? राजा के पीछे क्या होती है अनिल? सेना होती है। तो पोप के पीछे उसके फॉलोअर्स हैं, झूठे भविष्यवक्ता के पीछे उनके फॉलोअर्स हैं। तो राजा क्यों बोला उसने उनको? ये राजा और उनके पीछे उनकी प्रजा है। अब इनको क्यों खड़ा कर दिया खुदा? उनने सबको जमा करेगा, जितने भी ट्रिनिटी है, जितने भी देवी देवताएं वाले हैं और जितने खुदावन को मानते नहीं कि जीवित खुदा है, कोई ऐसी एक चीज़ है जो सारे कार्य को चलाती है। मैं आपको यह अच्छा बनने की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ? विश्वास करो और उद्धार पाओ। तो आप जब विश्वास को ऑटोमेटिक अच्छे हो जाओगे, है ना? तो आप बोलेंगे विश्वास करो और हम गंदे काम करते। अरे जब विश्वास करोगे तो ऑटोमेटिक तुम अच्छे हो जाओगे, बाहर से भी। जब अंदर से साफ हो जाएंगे तो बाहर से भी साफ हो जाओगे। ये सच्चाई है। क्योंकि रोमियो की पत्री के अंदर में क्या लिखा है? देखो, रोमियो और उसका अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर, क्योंकि उसके अंदर में क्या लिखा है? रोमियो की पत्री 3 अध्याय और 28वें आयत। Therefore we conclude, therefore we, अब इस समय में हम इसका खुलासा देते हैं। कंक्लूड को क्या बोलेंगे हिंदी में? कंक्लूजन। क्या बोलते हैं आखिरी में? सारांश। अब हम इस सारांश पे आ गए हैं। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और 28वें आयत। मैं जो बोला हूँ वो सही है कि नहीं? अनिल देख ले। That a man is justified by faith. That a man is justified by faith. कैसे अनिल? विश्वास, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पहली बात हो गई, खत्म। विश्वास से जीवित रहेगा और आपके पूरे काम खत्म। ठीक है, पाप खत्म। विदाउट द डीड ऑफ द लॉ। विदाउट का मतलब क्या हो गया? कानून की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कानून बाहरी घेरा हुआ है और विश्वास करना अंदर का घेरा हुआ है। खोले क्या सिस्टर? आपने है क्या? बोल, जोर से बोल। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उसके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ? 3:28 पढ़ रहा है कि क्या पढ़ रहा है? 3 पढ़ रहा है। रोमियो की पत्री 3:28। जोर से, जोर से। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। आमीन। विश्वास के द्वारा। और आगे काम। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का ही है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों स्टार्टिंग वाली लाइन उसने पहले ले लिया। इंग्लिश में पहले क्या है? विश्वास लिया, बाद में कर्म लिया। अब इसमें पहले कर्म लिया उसने। क्या लिया? पहली लाइन 28 पहली लाइन। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से हाँ, अलग ही। पहला लाइन उसने पहले कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहरता। धर्मी खत्म हो गया। व्यवस्था अगर आई तो व्यवस्था धर्मी जन को खत्म कर देगी। व्यवस्था क्या जब पाप दर्शाती है, इसीलिए कहता है तुम विश्वास से जीवित हो। और दूसरी लाइन क्या है? विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। आमीन। विश्वास के द्वारा।
और इब्राहिम के लेखे में उसका विश्वासी गिना। धर्म गिना गया। सही प्रचार कर रहा हूँ अनिल? गलत प्रचार कर रहा हूँ क्या? सही प्रचार कर रहा हूँ ना? आपको मैं अंदर लेके जा रहा हूँ। ये विश्वास करो कि उसने हमारे लिए सारे पाप दे दिए और धर्मी ठहर जाओ। शरीर तो छोटे मोटे पाप करेगा, तो पौलुस ने क्या कहा कि मैं अभागा मनुष्य क्या करूं? पाप में जन्मा हूं ना, तो पाप तो मेरा शरीर करता ही रहेगा, क्योंकि मनुष्य काय से जन्मा है? पापी शरीर हो गया। तो शरीर को ठीक करने के लिए गुनाहों ने एक व्यवस्था बनाई, और वह व्यवस्था को आपको विश्वास के तौर से लेनी है। ठीक है ना? विश्वास करोगे तो सुई के धागे से ऊँट भी पार हो जाएगा। कैसा? कैसा पार करेगा? पाप खत्म हो गए ना उसके। जब पाप खत्म हो गए विश्वास से, तो पास हो गया वो, है ना? स्वर्ग का रास्ता उसको मिल गया। पाप जब उसके पीठ के अंदर में पूरा पाप थे, जब पूरा पाप हटा गया तो वो इतना पतला हो गया कि सुई की नोक से भी वो, तो स्वर्ग का रास्ता उसके लिए खुल गया। तो हम सब के लिए ऐसा ही है, स्वर्ग का रास्ता हम सब के लिए ऐसा ही खुलेगा। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान, आ जाओ बेटा। अभी खुदा ने लिखा ना, जांग तो अपनी ठोकदारा, है ना? राजाओं का राजा जो आज आप अब आ जाओ। और धनवान और सामर्थ्य लोग, ये सारे जितने भी है शैतानी ताकतों से भरे हुए हैं। और है आत्मिक, अपने आप को क्या समझते हैं? लेकिन गड़बड़ी क्या है? ट्रिनिटी, मैन मेड ट्रेडिशंस एंड डॉक्ट्रिन्स। दे आर द फॉलोअर्स ऑफ मैन मेड ट्रेडिशन एंड डॉक्ट्रिन्स ऑफ मैन मेड। अब हमको करना क्या है? जो वचन में लिखा है वो खुदा के डॉक्ट्रिन्स है और खुदा के संदेश है, उसको हमको फॉलो करना। हमारे को वचन बताता है कि सिंगल पर्सन गॉड है, और मैंने आपको खोल के दिखा दिया। और उस सिंगल पर्सन गॉड को निकुलियों की शिक्षा, निकोलेटियंस के अंदर में उस एक खुदा को गड़बड़ करके 3 अलग अलग खुदावन को बना के दुनिया के अंदर में पेश करके उनके अंदर में क्या ला लिया? प्लेग। मनुष्य की रीतियों को मानना क्या हो गया? अपने ऊपर में। अब इस प्लेग से हटने के लिए एक रास्ता है, ये जो है वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह को सिंगल गॉड और उसके नाम का बपतिस्मा। बपतिस्मा क्यों लेना है? क्योंकि ये पानी है। जैसे ही ये आग और लहू से जल गया पूरा, तो फिर ये पानी और लहू दोनों यहाँ पे साफ करता है। वो पाप को साफ करने के लिए पानी से क्या करता है? हाथ और पैर को धो के फिर अंदर प्रवेश करता है। तो भाला क्या चीज़ है? पानी और लहू। क्यों भाला मारा गया? फॉर कंफर्मेशन दैट ही इज डेड और नॉट। रोमी ने उसको बार, क्योंकि जिंदे को तुम नहीं गाड़ सकते, सर्टिफाइड होना डॉक्टर की। तो उसने क्या किया? भाला मार के उसको चेक किया, और पानी और लहू बच गया। मतलब ऑलरेडी पानी और लहू से क्या हो गया? पाप मर गया, है ना? कंफर्मेशन, यीशु मसीह मर गया, मतलब पाप मर गया। काय से मर गया? लहू से और पानी से। क्योंकि यह राख तीसरे बार छिड़काई जाती थी। तीसरे दिन जो जिसके ऊपर में कोड़ लग जाता था, मरी लग जाती थी, है ना, पापी ठहरता था, तो तीसरे दिन उसके ऊपर में जौफ की डालियाँ रहती थी, अंजीर की, और उससे क्या है, कौन सा स्कारलेट से उसको, और वो लाल वाले ऊन से पानी, राख और पानी ले के उसको छिड़का जाता था। 7वें दिन छिड़का जाता था, तीसरे दिन नहीं छिड़का जाता था। तो उसका मतलब क्या होता था? वो पापी का पापी ठहरता है। क्योंकि अगर तीसरा दिन उसका छिड़का और उसको शुद्धिकरण नहीं हुआ, तो 7वें दिन अगर वो आएगा तो उसका शुद्धिकरण नहीं माना जाएगा।
क्योंकि ही कैनॉट bypass द क्रूसिफिक्शन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, डेथ, बरियल एंड रेजरेक्शन। कौन से दिन हुआ वो? तीसरे दिन। और सातवां दिन क्या है? हमारे समय में, क्योंकि सातवां दिन कन्फर्मेशन का होता है और सातवें दिन में ही सारा चीज़ क्या होगा, खुदावन अपने आप को उजागर करके दिखा रहा है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो। सबको जमा कर दिया। अब जमा करने में के बाद में क्या होगा? मेमने का संदेश जा रहा है ना, और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में क्या गया? छिप गया। वो अपने आप को राइचस समझ रहे हैं। जैसे लोग आजकल अभी से गाउन पहनना चालू कर दिए। काय का गाउन पहन रहे हो? क्योंकि दुल्हन का गाउन है सफ़ेद गाउन, तो सफ़ेद गाउन अभी से पहनना चालू कर दिए। बाहर का पहनावे से तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, बाहर की बाहर ही रह जाओगे। अंदर का प्याला शुद्ध होना है। खुदावन देखता है अंदर, तुम देखते हो मेरे को बाहर से। खुदावन कहाँ देखता है? अनॉइंटिंग उनकी रहती है। अब अनॉइंटिंग हो गई और ये खिताब खुदावन ने दिया, अब लोगों तक पहुंचाना बड़ा कठिन काम है। विश्वास नहीं करेंगे मेरे करीबी वाले भी और बाहर दुनिया वाले भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये यशाया की और प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी, देखते रहोगे पर तुमको। वही चीज़ यहाँ हो रहा है। खो में और चट्टानों में छुपे रहे। मेमने के प्रकोप से बचाओ मतलब क्या है? मेमने का संदेश नहीं, नको मेमने का संदेश नहीं सुनाना। अनिल, एक गार्ड हमारे पास तू बताना ही नहीं, तू हमको उल्टी बात सिखाता है। यीशु मसीह के नाम का पिता पुत्र पवित्र आत्मा का लिखा है ना वहाँ पे 28 में। जाओ चेले बनाओ, और मत्ती के अंदर में लिखा है। पर प्रेरितों के काम 2:38 में क्या लिखा है? बपतिस्मा जब एक्चुअल दिया गया हो तो थ्योरी थी, प्रभु यीशु मसीह की थ्योरी थी कि तुम पिता पुत्र पवित्र के एक सिंगल नाम से बपतिस्मा देना। उस थ्योरी को नहीं समझ पाए और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, लेकिन चेलों को समझ थी। उन्होंने बराबर उस नाम को पहचाना कि लॉर्ड भी पिता है, पुत्र भी जीसस है और पवित्र आत्मा भी क्राइस्ट है, और उस नाम से उन्होंने बपतिस्मा दिया। तो फिलिपियंस ने भी फिर किसके नाम का दिया? उसको जब बपतिस्मा दिया तो खुदावन ने पानी बना दिया और पानी में उसने बपतिस्मा दिया। कहा लॉर्ड का बपतिस्मा दिया, लॉर्ड के नाम का। लॉर्ड के, और लॉर्ड का नाम क्या है? मैं मेरे और तुम मुझे नहीं ग्रहण करते और करोगे भी नहीं। अरे ग्रहण करो, खो में मत घुसो। अपने अपने गिरजा स्थान, अपने अपनी देवी देवताओं के स्थान में और ट्रिनिटी वाले देवस्थान में और पास्टरों के अंदर में मत घुस के बैठो, निकलो वहाँ से बाहर। आज हमारे अनिल परिवार ने गाना गाया, आप लोगों के सब वन गॉड विश्वासी है, और आप उनके गाने को सुनेंगे आपके घर में आशीष मिलेगी, क्योंकि जो सच्चा वचन है वो खुदावन जो है वो इस चीज़ को गर्दानता है, सच्चाई को मानता है, सच्चाई को ग्रहण करता है ना। चेतानंद, चेतानंद भी बहुत रेगुलर है, वेरी गुड बॉय यू आर। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, बप्पा निकलेंगे नहीं बाहर, मर जाएंगे हम, तुम्हारे संदेश में नहीं आएंगे, मर जाएंगे हम। हमारे खो में भले हम हमारी खो में हमारे देवी देवताओं के अंदर में, हमारे ट्रिनिटी वाले संस्थाओं के अंदर में, हमारे पोप के अंदर में, हमारे झूठे भविष्यवक्ताओं के अंदर में, हमारे इमेज टू द बीस्ट के अंदर में हम संतुष्ट है यार। काहे को हमारे को नींद से जगा रहे हैं? ऊँग रही है 5 की 5 कुमारियाँ, 10 में से 5 क्या कर रही है? ऊँग रही है, जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जगाए हुए को तुम क्या जगाओगे यार? सोए हुए को जगा सकते। हम लोग सोए हुए थे, अनिल का परिवार सोया था, अनिल को जगाया, अनिल जग गया, पहले ही मीटिंग पे जग गया और दूसरी मीटिंग से अपने पूरे परिवार के साथ में
हमारे साथ में जुड़ा है, खुदा के साथ में वफादार है वो, मेरे साथ में नहीं। मेरे साथ में तो झगड़ा करता है, खुदा के साथ में वो है उसको, क्योंकि उसने देख लिया है कि खुदा की उपस्थिति। ये मेमने के क्रोध से नहीं घबराता है, बाकी सब क्या है, हाँ घबराते हैं। नहीं, ये कौन सा पास्टर आ गया, कहाँ से आया, अपने आप को अनदर एंजल का खिताब दे रहा है कुछ नहीं, और क्या है और क्या, इतने बड़े बड़े गिरजे, इतने बड़े बड़े, और ब्रदर ब्रैनम के बाद में कोई आया ही नहीं। 7वां और 8वां एंजल, अरे 8वां एंजल थोड़ी बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि अनदर एंजल है। 7वें एंजल के साथ में भी अनदर एंजल को जोड़ता है खुदावन, जोड़ता है कि नहीं, थोड़ा दिखाया हो ना मैंने आपको। 7वें अध्याय में भी दोनों जुड़े हैं, 10वें अध्याय में भी दोनों जुड़े हैं, है ना, 14वें अध्याय में भी दोनों जुड़े, क्योंकि सीलिंग लग गई थी वहाँ पे पहले ही। फिर 17वें अध्याय में बाबुल को नष्ट करता है 7वां एंजल, और 18वें अध्याय में बाबुल को नष्ट करता है अनदर एंजल का खिताब दिया है। ये सारे चीज़ें जुड़े हुए हैं बाइबल के अंदर में। इसी के लिए मुझको ये किताब इकट्ठा लिखी गई, 50-60 पन्ने की किताब है, और वो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी, ताकि आप समझेंगे और अपने आप को इस खो में से बाहर निकालोगे आप अपने आप को। हम और पहाड़ों चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो, क्योंकि हमको निकलना नहीं है वहाँ से, हमारे बिरादरी में से हमको निकलना नहीं है। हमारे चेतानंद है जो निकल के आ गए, नेरे बाबा, है ना, और वो बिल्कुल पक्के हैं भी इसमें संदेश में। और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, कैसा अनिल, मुंह से क्या होता है, बोल मैं रहा हूं लेकिन आवाज किसकी, क्यों, क्योंकि उसके मुंह में मधु है। बोलेगा मधु, पेट में जा क्या करेगा, कड़वापन करेगा, क्योंकि कड़वापन किसको दिखाया, अविश्वासियों को दिखाया, और मधु किसको दिखाता है, विश्वासियों को। दो लोग बुझाते, एक वचन खाया उसने, खुदा का वचन प्रचार किया, वचन को खाया, खुदा ने खिलाया, उसने प्रचार किया। दो जातियां उत्पन्न हो गई, पहले विश्वासियों की मधु, और दूसरा गड़बड़ी। दो जातियां पैदा हो गई, विश्वासी और अविश्वासी। और मेमने के क्रोध से छिपा लो। मेमने का क्रोध कैसे, यही अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बाबुल को कैसा नष्ट किया हमने, आज तक किसी ने नष्ट किया है, जब तक खुदावन ने 7वीं कलीसिया काल तक रुका रहा। 7वीं कलीसिया काल के अंदर में उसने अनॉइंटेड पर्सन को भेज के बाबुल का क्या किया, अब संदेश निकल चुका है कि बाबुल ट्रिनिटियन है, आपको वहाँ से निकल के सिंगल पर्सन गॉड के पास में आ जाना है। और खुदावन गिरजों के अंदर में नहीं है, गिरजों के, क्योंकि 7वीं कलीसिया काल के द्वार पे खटखटा रहा है, मेरे लोग, मैं द्वार पे, आउट ऑफ द चर्च एंड नॉकिंग एट द डोर, आउट ऑफ द चर्च एंड knocking at the door, come out my people, don't accept their plagues। और उनकी मन 18:4 क्या बोलता है, उनके प्लेग्स को मत अपनाओ। 18:4 अच्छी वर्डिंग्स रहते हैं ना, आप अपने को वर्डिंग्स याद नहीं है तो आपका एक्चुअल वर्डिंग्स दिखाता हूँ। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों उसमें से निकल आओ कि तुम उनके पापों के भागी ना हो, प्लेग्स के भागी ना हो। डोंट एक्सेप्ट द प्लेग्स, इन इंग्लिश में क्या लिखा है, प्लेग एक्चुअल वर्ड है, अबे ट्रांसलेट करते हैं ना तो गड़बड़ कर डालते, मरी लिखना था, यहाँ पे क्या लिखे है, पापों से। और जो मरी है वो पाप को दर्शाती है कि मरी क्या करते हैं, धीरे धीरे आदमी को खाती है, एकदम मौत नहीं देती है, खाती है और वो परेशानी में डाल देती है, दुख तकलीफ, और इसमें बाद में उसकी के भागी ना हो, और उसकी विधियों में से कोई तुम पर ना। विधियाँ क्या है इनकी, ये बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम के बजाय पिता पुत्र, मेमने के मुंह से बचाओ, संदेश से बचाओ।
और उसके क्रोध से बचा लो, क्योंकि उसके क्रोध का भयानक दिन, यहोवा का दिन का मतलब क्या आने दे, आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? यहोवा का दिन रोज और शोर के साथ में आता है। कौन सा दिन है वो? तबाही का दिन है। चांद और सूरज की और तारों की और लॉ को डिफाई कर देने वाली बात होगी, क्योंकि वहां पे एक ऐसा दिन होगा। कैसा दिन होगा? जहाँ रात और दिन की जरूरत नहीं, एक कंप्लीट डे जैसा उजाला रहता है। दैट डे विल बी टिल इटर्निटी टू इटर्निटी, हैव नो एंड, दैट इज कॉल्ड पैराडाइज। वहाँ आपको जाना है। ये जगह आपकी नहीं है जहाँ सूरज आता चांद आता, आपकी जगह वो है। पर इसको न्याय करेगा वो 1000 साल के लिए। उसके बाद में नया धरती और नया आकाश बनाता है वो, है ना। मिलेनम है, क्योंकि इस मिलेनम में इनको बांध का, यहाँ मृत्यु हो गई है सब। वहाँ पे ये एक तो पैराडाइज है और दूसरा ऐसी खो है जहाँ का बॉटम मतलब स्पित, अंधा कुआं, वहाँ पे सारे के सारे जमा हो रहे। और अब ये हो गई छठी मोहर। 7वीं मोहर आपको 11वें अध्याय में मिलेंगी। इसके दोनों के बीच में मैं आपको आज का संदेश सिर्फ जितनी तकलीफ़ें, परेशानी और बहुत ख़तरनाक चीज़ें जो है वही समझाना आ रहा हूँ। तो मैं अभी डायरेक्ट आपको तूरी पे लेके जाऊँगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूँ कि 6वीं मोहर और 7वीं मोहर के बीच में ये 2 जन हैं। तो क्या लिखा है? जब तक हम अपने खुदा के लोगों को मोहर ना लगा दे तब तक तू ए चारों हवाएं, ये जो वेदी के ऊपर में 4 एंजल्स है ना, ये आपके प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टर्स, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं विश्वासियों को। और अविश्वासियों के लिए क्या है? तबाही का खम्मा है। चारों कोने के अंदर में ठहरेंगे और उनको क्या कह रहा है कि रुक जाओ भी। संदेश, अरे मैंने ये भी यहाँ तक देखा कि प्रकाशित वाक्य के आगे के इसमें हम देखेंगे कि ये 2 जो जन हैं, ये तबाही जो है उसको खुदावन को कहते हैं कि खुदावन आपका जो जजमेंट है सही है, क्योंकि ये 2 कौन है? भेदी है, ब्रदर ब्रैनम और अनदर एंजल। और थर्ड एंजल क्या है? प्रचार करने के बाद में जो रिजल्ट आता है, हर परीक्षा का रिजल्ट आता है ना, तो रिजल्ट के अंदर में अब हमने अपने को जितको बचाना था हमने ये बोल रहे हैं ना कि अभी रुक जा, अभी बचा रहे हैं हमको, तो मोहर लगाने दे, मोहर। क्योंकि यहाँ पे पहला एल्डर 5वें अध्याय में और दूसरा एल्डर यहाँ पे 7वें अध्याय में 13वीं आयत के अंदर में एल्डर है। तो फिर वो सारा खुदावन की दुल्हन को बता रहा है। और 1,44,000 को पहले 1,44,000 का दिखाया है बचा हुआ, बाद में फिर दुल्हन का बचा है, क्योंकि दुल्हन का है आसमान में। जैसे कि जोसेफ, यूसुफ की पत्नी कहाँ थी? उसके घर में थी। तब ये अपने भाइयों को, 11 भाइयों को अपने आप को दर्शाता, अरे मैं यूसुफ तुम्हारा छोटा भाई हूँ, और मेरा बेंजामिन मेरे ही माँ का जो बेटा है, सगा बेटा भाई बेंजामिन, वो कहाँ है? उसको लेके आओ। तब उसको लेके आते हैं। फिर वो खुदावन बोलता, अब बस, अब मैं अपने आप को अपने लोगों पे प्रकट करूँगा, यहूदियों को प्रकट। लेकिन तब यूसुफ की पत्नी कहाँ थी और उसके बच्चे कहाँ थे? उसके अपने महल में थे, राजमहल में थे, क्योंकि यूसुफ राजा की पदवी के ऊपर में था ना। मुंह के लिए राजा कहलाता, असल राजा कौन था? ये जो इनविजिबल गॉड है, ये है राजा, लेकिन काम कौन करता था इस राजा का? काम उसका बेटा। इमेज समझ में आ रहा है? वहाँ पे राजा कौन था? अनिल, फिरौन। काम कौन करता था? जब फिरौन के पास आते थे तो फिरौन बोलता था, भैया मेरे हाथ में
सब कुछ किसके हाथ में है? यूसुफ के हाथ में है, जोसेफ के हाथ में है। इसके पास जाओ, वो तुमको बचाएगा, क्योंकि 7 साल की मरी और बाकी है। 7 साल की पूरी मरी होगी, उसके बाद ही तुम्हारे को अनाज मिलेगा। अब तक सारा कुछ नहीं मिलेगा। 7 साल तक बड़ा अकाल रहेगा। सेम यहाँ पे है कि पहले सीलिंग होती है। यहाँ 7वें अध्याय में भी पहले 1,44,000 है। 14 चैप्टर में भी पहले 1,44,000 है जो जैतून पहाड़ पे खड़े हैं। उसके बाद में दुल्हन का जिक्र हो रहा है, क्योंकि दुल्हन और पहले से ही आसमान में खुदावन के हरम में है। फिर वो आ रहे हैं 19वें अध्याय में वापस, ठीक है ना। तो 8वें अध्याय में फिर हम लोग आ जाओ अब 7वीं मोहर के अंदर में। तो 6वीं मोहर और 7वीं मोहर के बीच में एक आपको बचने का सिद्धांत दिया है। कैसे बचेंगे कैसे? अनॉइंटेड पर्सन के आवाज़ के जरिए से सुनो, टैली करो, मिला लो, सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, राजा है कि नहीं। क्योंकि इनके बाहर जितने भी बड़े बड़े याजक क्यों ना हों, कोई काय कामाचे, कोई काम के नहीं रहेंगे आपके। वो आपको वही संदेश देंगे जो आउट ऑफ ऑर्डर है, जो बाइबल के बाहर है। कौन सा देंगे? बाहर का चमकाएंगे आपको, बाहर से पहनावा देंगे। ये पहनो, क्या पहनो? सफ़ेद कपड़े पहनो, ये मत करो, पाप मत करो, ये मत। अरे विश्वास में नहीं, विश्वास करो कि खुदावन ने तुम्हारे गुनाहों को सूली पे अपने नाम पर में ले लिया है, वो विश्वास करो। क्योंकि कोई भी धन धर्मी ना है, ना हुआ है और ना होगा, और ना अपने आप को धर्मी बना। धर्मी जन एक बन सकता है। हम लोग धर्मी काहे से बने? खुदावन ने हमको धर्मी बनाया है, खुदावन ने हमको धर्मी ठहराया। हम धर्मी नहीं, पापी है, लेकिन खुदावन ने हमको धर्म बना दिया। धर्म। वो 8वें अध्याय के अंदर में फिर जब मोहर खुली, तो वो 8वीं मोहर के अंदर में 7 तुरी भी है और 7 मरी है और 7 खुदावन के, जो 6वीं मोहर के अंदर में पावर लाती है। पावर का है? पनिशमेंट का है। पावर वो है कि सारी गंदगी को और ईविल को और खुदावन किस तरीके से नाश करेगा। चलते हैं आगे। लेकिन जैसे ही पहली तूरी फूकी जाती है तो फिर एक और याजक का काम आ जाता है यहाँ पे। पहले तो मोहरों को समझा दिया खुदावन ने, लेकिन एक अनदर एंजल आ जा रहा है। और वो अनदर एंजल क्या कर रहा है? ये जो विश्वासी लोग जिन्होंने विश्वास करे, तो अनदर एंजल पे, अब हमारे समय पे आपको क्या करना है? अनदर एंजल पे विश्वास करना है। पवित्र आत्मा वहाँ से निकल के अनदर एंजल पे आ गया। अब ये क्या कर रहा है? अब जो हम लोग जीवित बचे, तो जो ब्रैनम के टाइम पे मरे हो, ब्रैनम होकर बचेंगे, वो अब नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक फरमान फिर से चालू हो गया। पहले क्या था? हेलमेट मत पहनो। अब क्या हो गया? हेलमेट पहनो। फिर तीसरा फरमान क्या हो गया? हेलमेट पहनो, है ना, लेकिन ट्रेडमार्क होना चाहिए। ट्रेडमार्क, कुछ भी पहन लेंगे ऐसा नहीं। ट्रेडमार्क मतलब ISI मार्क का होना चाहिए, मजबूती होना उसके अंदर। ये तीसरा है। तो तुम अगर वो साधारण सा हेलमेट पहन के जाओगे और फरमान निकल गया कि तुमको ISI मार्क का हेलमेट पहने हैं, उसके बिना तुम्हारे को, तो तुम ये जाएंगे तो पुलिस वाला चालान करेगा कि नहीं करेगा? वैसा ही ये फरमान जब निकल गया है अनदर एंजल का, तो आपको मानना ही है, मानना ही है, नहीं तो चालान। और वो चालान में क्या लिखा होगा? फांसी, अंटिल डेथ, मौत, जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, खत्म। और वो दस्तावेज क्या है? मौत का दस्तावेज हो जाएगा।
लेकिन हमारे पास में कौन सा दस्तावेज है? नए नियम का, जो पहले दस्तावेज को ख़त्म करता है और नए को ये नया सिरा पवित्र पवित्र क्यों पुकारता है? पवित्र पवित्र, क्योंकि दस्तावेज है उसके हाथ में पवित्र लोगों का। उस दस्तावेज में किसके नाम लिखे हैं? मेमने के लहू से लिखे हुए हैं। किसके नाम लिखे हैं? मेमने के लहू से। ये एंट्री कैसे हो रही है? मेमने के, पहले मालूम था कि बिना लहू के एंट्री नहीं है। जब फिर क्या है, वो याजक ने क्या किया? वेदी में से आग ली। पहले तो प्रार्थनाएं लेके गया, है ना, धूप जलाए, प्रार्थनाएं और प्रायश्चित के ढकने में खुदावन को दिखा दिया ये मेरे लोग हैं। कौन कर रहा है? वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कर दिया। और उदाहरण के तौर पे, शैडो के तौर पे हारून और इलाजर लोग किया करते थे, बड़े याजक लोग। हमारे समय में कौन कर रहा है? वही टाइप के याजक लोग, थ्योरी फॉर्म में, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कर दिया, उसको हम लोग यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। तो ये इटर्निटी का रास्ता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि उसने क्या लिया? फिर वो वेदी में से आग ली, कोयला लिया, और क्या किया उसने? देखा, मैंने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, मैंने ये कहा कि ये जो दोनों अनॉइंटेड है, ये क्या करते हैं? लेखा जोखा देते हैं कि अब हो गया खुदावन। अब ये राख को क्या किया? खुदावन ने फेंक दिया। और बता कौन रहा है? याजक। क्योंकि ये दो अनॉइंटेड धरती के ऊपर जितना भी लेखा जोखा हो रहा है, जो विश्वास कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसका लेखा जोखा, जो बचेंगे जो ना बचेंगे, उसका लेखा जोखा इनके पास में। और उसने क्या किया? याजक ने फेंक दिया। मृत्यु कन्फर्म है। अब वो किस तरीके से फेंकने के बाद में तूरी फूकी चालू होगी। देखो, पढ़ो आप। उसने सामने पहुंचा, तब सरदूत ने धूपदान लेकर उसने वेदी पे आग भरी और पृथ्वी पे उंडेल दी, और गर्जन के सब बिजली और भूकंप होने लगे। सारी तबाहियां काय पे हो गई? तूरी फूकी जाने वाली पहली तूरी। इसके लिए मैं कह रहा था, बहुत ही भयानक बातें लिखी हुई है काय के अंदर में? छठी मोहर के अंदर में। तबाही का कारण है। काय का कारण है? जब पहली मोहर, अभी आपको छठवीं मोहर पढ़ के मैंने एक एक लाइन समझा, और उस एक एक लाइन को एक एक तूरी के साथ में टाइपिफाई करना, मिलान करना। तब वे 7 दूत जिसके पास 7 तूरियां थी, उन्होंने फूंकने को तैयारी हुई। 7 दूत जिनके पास 7 तूरियां थी, है ना। अब ये लोग क्या हो गए? जो प्रचार यहाँ हो गया, उसका रिजल्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? 2000 साल पहले जो रिजल्ट जो आ गया, अब अनिल को 100% मार्क्स मिलते हैं, कितने मिलते हैं? चेतानंद को कितने मिलते हैं, है ना। तो इनका और इनका ये हो रहा है ना, रिजल्ट। तो इन्होंने जो प्रचार किया, उस समय के लोग बचे। इन्होंने जो, क्योंकि अभी सब गड़े हुए हैं ना, मुर्दे, और हम जो बचे हैं वो दोनों काम होना है ना। तो अब क्या हो रहा है कि ये किनके ऊपर में? अब जो मर के गड़े हुए उनके ऊपर में भी, क्योंकि दूसरी मृत्यु का कारण बनेंगे। जो पहले पुनरुत्थान के भागी नहीं होंगे, वो जो बच जाएंगे वो मृत्यु का, क्योंकि दूसरी मृत्यु उनको समाप्त कर देंगे हमेशा। और हमको दूसरी मृत्यु में क्यों नहीं जाना पड़ेगा? क्योंकि हमारा न्याय यहाँ पहले ही हो गया है। दोबारा अभी हम लोग जज करेंगे। तो ये मैंने कहा ना कि ये जज कर रहे हैं। इसने कुछ पूछा क्या? इसने क्या किया? अभी मैंने जितना पहुंचाना था धूपदान, और उसी ने क्या किया? तो ये लोगों ने खुदावन को बताया ना, अभी हो गए। फिर वैसे ही खुदावन ने उतरा। यानी ये 4थे अध्याय में देखेंगे ना, फिर एक ने हसूला लिया खुदावन ने, और ये जो एंजल वेदी में से आया खुदावन को बोल रहा है कि पक गई है काट। क्या बोल रहा हूँ? तो कौन बोल रहा है? धरती का, पृथ्वी का एंजल है। 2 बार बोलता है वो, एक बार और फिर आसमान से आता है। फिर वो बोलता है कि अब दाखरस को काट। पहले क्या है? हार्वेस्ट, दूसरा
पापियों के लिए हार्वेस्ट दाख की बारी। उसके पहले एक थर्ड एंजल का भी रोल है। अब हमारे समय में आएगा कि हमारी बात आएगा मालूम नहीं, थोड़ा सा साइलेंस है इसके बारे में, लेकिन समय रहते रहते खुदावन बताएगा। लिखा तो है थर्ड, कौन है क्या है खुदावन अपने समय में बताएगा। तो इसका ये मतलब नहीं है रैप्चर दूर है, सब फटाफट होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। मेरे बारे में लिखा है, लेकिन मेरे बारे में 7वें अध्याय में भी लिखा है, 14th आयत में भी लिखा है अनदर एंजल, 7वें अध्याय में भी लिखा है, और पहले अध्याय में और पहली आयत में भी लिखा है सिग्निफाइड एंजल। पहले क्या है अनिल, उसने उसे दिया प्रकाशित किए दासों को और सेवकों को सारी बातें बताए, और एंड लिखा है। फिर वो सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद एंड अ सिग्निफाइड एंजल, खुदावन इज सेंडिंग ए सिग्निफाइड एंजल। 2 जनों का काम यहाँ पे है, और एक तीसरा भी है, थर्ड पुल कर डालेगा वो। तो क्या हो गया है कि जब पहले ने तूरी फूकी तो 7 तूरी में से एक ने फूकने को तैयार हुआ। पहले दूत ने तूरी फूकी और लहू से मिले हुए ओले आकाश से कास्ट देम आउट लिखा है इंग्लिश में। कास्ट मतलब फेंक दिए गए। यहाँ पे क्या लिखा है, उत्पन्न हुए, उत्पन्न नहीं हुए, उनको सीधा अकाला गया वहाँ से। किन लोगों को, आसमानी, अभी हमने पढ़ा ना सूरज चांद सितारे, क्या पढ़ा था अनिल हमने 6वें मोहर में, सूरज चांद काला हो गया, लाल हो गया, तारे आसमान में अंजीर के समान गिर पड़े। सेम आसमान को तबाही दे रहा है कि नहीं। यहाँ पे आसमान की तबाहियाँ जो है ओले के समान गिरे जा रहे हैं। ये सारी इनके देवी देवताएं जो है ना, जितने जिन्होंने बगावत की थी खुदावन के साथ में, उन और अपना सिंहासन जिन्होंने बताया था स्वर्ग में, उन सारे सिंहासनों को क्या दिया, कास्ट देम आउट। पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई, और पहाड़ पेड़ों की 1/3 जल गए, और साथ में घास भी जल गए। पेड़ घास ये क्या है, लाइफ को दर्शाता है, जीवन को। अरे जीवन पूरा खत्म हो गया। झाड़ के अंदर में जीवन है, पौधों के अंदर में, घास के अंदर में जीवन है, पूरा जीवन क्या हो गया, यानी इंसान और मनुष्य जाति सारी। ये मैंने इसमें से लिया। आप यशाया की किताब पढ़ेंगे ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, और जरमाया की किताब और एजेकियल की किताब 8, 9, 10 स्टार्टिंग के जो चैप्टर है उसके अंदर में लिखा है सेम प्रकाशित वाक्य की कैसी जो तबाही है वहाँ पे उस समय है, क्योंकि वो बलवा करने वाले लोगों के ऊपर में ऐसी ऐसी तबाही खुदावन लाने वाला है। और वैसा लाया, बाबुल के देश में बंदवाई में पकड़ के लेके गए, है ना। फिर अलग अलग राजाएँ आए, है ना, इन्होंने उनके ऊपर में तबाही की, हल्ला बोले था। फिर पर्जिया का राजा आया, मिडान का राजा आया, अलेक्जेंडर आया, है ना, फिर रोमी सिपाही आए, और उसके बाद में अभी पोप का सिंहासन चल रहा है, और पोप के बाद में झूठे भविष्यवक्ताओं का काम चल रहा है, पास्टर बड़े बड़े जो ट्रिनिटियंस है। और अभी फिर इमेज टू द बीस्ट बन गया, भयानक चीज़ होंगी। तब एक सपोर्ट के लिए एक थर्ड एंजल आ रहा है। जब इमेज टू द बीस्ट बनेगा ना, तब तकलीफ आएगी ना, खाना पीना नहीं मिलने वाला है बिना ट्रिनिटी के। क्या इमेज टू द बीस्ट, जिसके पास में इमेज है, जिनका नाम है, उसको ही खाना पीना मिलेगा, बाकी सबको क्या हो जाएगा। पर आपको डरना नहीं है, आपके सर का एक बाल भी खुदावन बाका नहीं होने वाले, खुदावन की गारंटी है। फिर दूसरी है ना तबाही, तो जिस देवी देवता पे विश्वास करते थे तो वो कहाँ गिरे अनिल, क्या हो गया उससे, पेड़ झाड़िए और घास क्या हो गई। ये कौन लोग हैं जो बेटा तुमने जिन पे विश्वास किए थे खुदा के कमांड से, वही देवी देवता है अभी तुमको जला ले, खत्म कर रहे हैं, फिनिश। खुदा के कमांड से हो रहा है कि नहीं। दूसरे दूत ने तुरी फूकी तो मानो आग का सा एक बड़ा पहाड़ समुद्र पर डाला गया। ये 8वां अध्याय खत्म करेंगे,
नब्बे में पाँचवीं और छठवीं तुरी है, और छठवीं और सातवीं पूरी तुरी के बीच में फिर एक बार बचाव है, 10वां अध्याय का, जो भविष्यवक्ता का भी है और अनदर एंजल का भी है। एक बार भविष्यवक्ता संदेश देगा, दूसरी बार अनदर एंजल का भी प्रचार होगा। गॉस्पल विल बी प्रीच्ड वंस अगेन। यू हैव टू प्रीच द गॉस्पल अगेन अनटू द वर्ल्ड, टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। फिर से तुझे ये संदेश देना पड़ेगा, अनदर एंजल को कह रहा है वो। तो हम लोग अभी ये 1 2 3 4 ले लेंगे और फिर आप का संदेश समाप्त करेंगे। दूसरी तूनी ने तुरी फूकी तो मानो आग का सा जलता हुआ एक पहाड़ समुद्र में डाला गया। ये पहाड़ कौन सा है? शैतान का पहाड़ था, जो खुदावन के इबादत करता था। कौन था अनिल? कौन था? इब्लिस। 14 इजाया 14 और 28 हेजेकिल। ये छा जाने वाले करूब, सुंदरता की वजह से तेरे अंदर में पाप समा गया और तूने बगावत खुदा से कर डाली। ठीक है ना? तो ये पहाड़ कौन सा है? पहाड़ किसको बोलते? सबसे पहले पहाड़ को जानना है, क्या बोलते? आमीन। इबादत का स्थान, ये पहाड़ है खुदावन का, जहाँ से इबादत हो रही है। तो वो पहाड़, कुएं के पानी पे भी खुदावन बता रहा था कि वो पहाड़ कौन सा है जहाँ 2 और मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, वो पहाड़। वो तो सामरी स्त्री को क्या बोलता है? भारी है। अब हम लोग कौन है? सामरिया लोग है ना, हम लोग यहूदी लोग हैं। सामरी यहूदी के समान ऑडिशन अनाउंटिंग हुआ, लेकिन यहूदियों के समान हारून यहूदी था ना, उनके समान अनाउंटिंग। उसको बोला पानी पिला, वो बोला सामरी स्त्री अछूत स्त्री। अछूत वछूत ने खुदावन सबको अशुद्ध कर देता, क्या कर देता? शुद्ध कर देता है। खुदावन का जो पानी है वो सबको, ये पानी छोड़ा जाता है ना, राख और पानी के ऊपर में फर्राटे से पानी छोड़ा जाता ताकि वो साफ हो जाए। तो सर, क्योंकि आसमान में भी 2 नदियाँ पानी दे रही है, खुदावन के सिंहासन से पानी बह रहा है। और ये जकरिया किताब के अंदर में भी है, और प्रकाशित वाक्य के अंदर में झरना है, पानी का झरना, जो उनको 2 झाड़ देता है और अलग अलग टाइप के फल देता है। फास्ट लेते हैं इसको। अभी पहाड़ समझ में आ गया? तो उसने कहा कि तू कोई वही तो नहीं जहाँ 2 और 3 तेरे नाम से इबादत करेंगे। तो बोलता है पहाड़ पे इबादत करेंगे, तो बोलता मैं वही पहाड़ हूँ। तो मेरे नाम से लोग पवित्र आत्मा, विश्वास का पहरावा पहन के, और फिर मैं उनको पवित्र आत्मा का पहरावा पहनाऊंगा। समुद्र में डाला गया, हो गया। काय में डाला इसको? कहाँ डाला? समुद्र मतलब लोग। कौन से लोग के ऊपर में? जिन्होंने अपने नाम से, जो क्रिएटेड गॉड है, ये क्रिएशन में आता ना शैतान, तो उसके अंदर में बलवा है, अपने आप को खुदा माना। तो लोगों ने आधे 1/3 नीचे गिरी, बगावत कर ली शैतान के साथ में। और फिर इनके विश्वासी लोग जो है धरती पे जो इनको विश्वास कर रहे, ट्रिनिटी। अभी अंत के समय में ट्रिनिटी को खुदावन ने क्या किया? बाबुल को ख़त्म किया, रोमन कैथलिक चर्च को ख़त्म किया, कैथलिक्स को ख़त्म किया, प्रोटेस्टेंट को ख़त्म किया। कैसे? एक ही शब्द से, कि बाइबल कहती है कि खुदावन एक सिंगल पर्सन गॉड है और 3 रोल में अपने आप को 3 प्रकट नहीं करता, 3 रोल करता है। 3 रोल में प्रकट करता तो 3 अलग अलग आदमी हुए ना। 3 अदाकारी करता है, पिता की भी, पुत्र की भी और पवित्र आत्मा की। अब इनको जलता हुआ पहाड़ गिरा, काय पे गिरा सिस्टर? पानी पे। तो काय पे गिरा? ये लोगों के ऊपर में, अविश्वासियों के ऊपर में ये पहाड़ गिरा। है ना खतरनाक चीज़? मैं गलत वर्ड बोला, खतरनाक है ना? परेशानी का सबक है। और समुद्र की 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज भी नष्ट हो गए। जहाज मतलब क्या हो गए?
जहाज क्या है, शान से चलता है, पानी के अंदर में ताकत से चलता है। वो शैतान की ताकत को भी खुदावन ने पानी के अंदर, क्योंकि ये जो है ना, ये संस्थाएं हैं जिनके बारे में मैंने बताया बड़ी ताकतवर हैं। रोमन कैथलिक वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, पैसा से सारी लदी हुई है, सोने और चांदी के आभूषण। वो कहती है कि मैं बड़ी वेश्या हूँ और मैं विधवा नहीं हूँ, क्योंकि उसने अपने अलग से अलग पति बना लिए हैं। जो खुदावन को छोड़ के उसने अपने लिए अलग पति बना लिए। और उस वो कहती है कि मैं हैरलेट हूँ। हैरलेट मतलब कि मेरे बच्चे अभी हैं। वोर यानी बच्चे उत्पन्न करने वाली। वोर मतलब एक खतरनाक स्त्री जो बच्चे उत्पन्न करे, अलग अलग पतियों के साथ में, अलग अलग देवी देवताओं भगवानों के साथ। और वो उसके अनगिन, अब दिख रहे पूरे अनगिनत बच्चे उनके। उस सारों के ऊपर में पहाड़ गिरा। शैतान ने क्या किया? बचा के निकाल रहा हूं कि नहीं आप लोगों को बाहर। तीसरे दूत ने जब तुरी फूकी तो एक बड़ा तारा, ये कौन है? अब वो महाशय को भी गिरा दिया उसने, जिसने बगावत की थी। तीसरा नंबर उसका है, जो मशाल के समान जलता था, स्वर्ग से टूटा, है ना। अब ये भोर का चमकता हुआ सितारा तो प्रभु यीशु मसीह भी है ना अनिल? फिर क्या बोलेगा? अरे ये तारा टूट के गिरा, वो तारा नहीं टूटने का, वो लाइट सुबह तक देगा। कहाँ तक? रात भर लाइट देगा, क्योंकि रात को खत्म करेगा और दिन को उजाले में बदल देगा, रात को उजाले में बदल देगा। ऐसा भोर का तारा है। रात भर चमक रहा है, मतलब भोर तलक चमक रहा है, और रात को क्या करता है? वो ख़त्म करता है और दिन को स्थापित करता है कि अब सूरज और चांद की रोशनी की नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं। और नदियाँ की 1/3 पर और पानी के सोते पर आ पड़ेगा। अलग अलग संस्थाएं हैं ना, अलग अलग बहुत सारे 1000-2000 के ऊपर में संस्थाएं और डिवीज़न है इनके, और बड़े छोटे छोटे भी गट बना लिए, है ना। अभी हमारे यहाँ पे 2 पास्टर आए थे ना, है ना, और ये चर्च को तोड़ के यहाँ से लेके जा रहे थे। अनिल के पीछे लग गया था, जा चल करके। हाँ, अनिल को बोल रहा था कि पास्टर बना दो तेरे को वहाँ पे आकर के, है ना, तोड़ देगा। और वहाँ पे जबकि उसको क्या, उन लोग को क्या करना था? यहाँ मिलना था, है ना। पापी लोग और पापी लोग का समुदाय बना रहे हैं वो लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को देखना क्या है कि ये जो शख्स बोल रहा है इसके ऊपर में आग का खंभा है कि नहीं, प्योरिटी है कि नहीं, शुद्ध किया हुआ है कि नहीं, इसके ऊपर में खुदा ने धुएं के बादल से इसको आशीष दी है कि नहीं, इसके ऊपर में पानी का छिड़काव किया है कि नहीं, ऑलिव ऑयल का छिड़काव, लहू का और पानी का छिड़काव किया। देखे क्या आपने? पानी के छिड़काव पानी के समान आ रहे हैं, और 1/3 पानी नाक दावना हो गया। हट तेरी, पूरा गया, कोई काम का नहीं रहा पानी। पानी मतलब विश्वास। अब वो पानी जिससे पाप धुलते थे, ये पानी क्या कर रहा है? और पाप को उजगा रहा है और तुम्हारे को परेशानी में डाल रहा है। तारे का नाम नवदाना, 1/3 पानी कड़वा हो गया, काम का ही नहीं, क्योंकि पानी का काम है शुद्ध करने का है। और शैतान का पानी क्या करता है? और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से क्या हो गए? प्लेग। 7 प्लेग है ना, प्लेग के साथ में जुड़े हुए। 6ठी मोहर के अंदर में 7 तूरियों के साथ में प्लेग भी लगे हुए हैं। ये अभी तूरियाँ बोल रहा हूँ मैं, उसके बाद प्लेग है, और प्लेग के बाद में 7 खुदा के क्रोध के प्याले, तीनों एक साथ में जुड़ के 6वीं मोहर के अंदर में अपना हवाला पेश करते हैं, अपनी मर्दानगी, शैतानी ताकतों की मर्दानगी बताते हैं, पावर बताते हैं। और पावर क्या है? कि तुमको कैसा ख़त्म करना, पाप को कैसा मिटाना, क्योंकि खुदा के कमांड से सारा हो रहा है। अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 क्या हो गया? उजाला ना रहा, और वैसे रात भी हो गई, क्योंकि रात और दिन की अभी ज़रूरत है नहीं। इसमें मैंने आपको फिर वो
वो वाली बात बताया था। कौन सा? जकरियस किताब 14 अध्याय पढ़ लेंगे उसको हम लोग। तब मैंने फिर देखा कि आकाश के बीच एक और उकाब उड़ता हुआ ये बीच में आ रहा है। जैसे ही चौथी तूरी फूकी गई तो एक और खुदा ने एंजल बोला है कि अब तो बच जाओ, है ना। ये स्पिरिचुअली डेथ है, स्पिरिचुअल डेथ है ना। अभी हकीकत में नहीं हो रही है ये सारी बातें। जब मैंने प्रचार कर दिया, भविष्यवक्ता ने प्रचार कर दिया, तो रोम का साम्राज्य समाप्त, ट्रिनिटियन के डिनोमिनेशन ख़त्म, प्रोटेस्टेंट चर्च ख़त्म, जितने भी और भी है त्रिएक देव वाले ख़त्म। अब आपको क्या करना है? ये संदेश सुन लो। तब मैंने फिर एक और आकाश के बीच में एक उकाब का संदेश। उकाब पक्षी का मतलब क्या है? कौन सा प्राणी है उकाब? उड़ता हुआ उकाब कौन सा प्राणी है? ये 4 प्राणियों में से एक है, वो है। उसका प्रचार कौन करेगा? उनकी आत्मा, आज जो आत्मा काम कर रही है, किसकी काम कर रही है? उड़ता हुआ वो उकाब। देखना अब ये एंजल है, ये आपको दिखता होगा। अब मैं बताने से ऐसा नहीं है, पर आप गौर करोगे कि मैं जब भी देखता हूँ तो यहाँ पे एक एंजल जो है वो उड़ता है। ये दिखाने के लिए कि अनदर एंजल को खुदावन ने एंजल करके, इस एंजल को देखा होगा यूहन्ना लिखते हुए कि मैंने आसमान से उतरते हुए एंजल को देखा और वो संदेश दे रहा है। तो ये सारी बातें खुदावन आपको दिखा रहा है ना। तो अब ये क्या कर रहा है कि उन 3 दूतों को 3 तूरी अभी फूकने जानी बाकी है। उससे पहले उकाब पक्षी संदेश दे रहा है, यानी ये वाला संदेश आपके पास में जाने। अब तो आ जाओ रे मेरे भाइयों, अब तो समझ लो खुदावन को, जीवता खुदावन कौन है। यहाँ उन 3 के शब्दों के कारण जिनका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वाले पे हाय 3 मरी है, 3 टाइप की, खत्म। जकरियस नबी का आपको बताता हूँ छोटी सी आयत पढ़ के कि ये जो अंधेरा हो जाएगा रात और ये हो जाएगा, उसका मतलब क्या होता है। बुक ऑफ जकरियस 14 चैप्टर। जकरियस और 14वां अध्याय, है ना। तब ये आप यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगले संडे में आपको 5वीं और 6वीं तूरी और 7वीं तूरी, 6वीं और 7वीं तूरी के बीच में फिर से आपका एक बचाव है। वो 10वां अध्याय है, जिसके अंदर में भविष्यवक्ता और अनेरा एंजल फिर से संदेश दे रहे हैं। देखो अब ये रात और दिन का क्या होता है यहाँ पे। उस दिन कुछ उजाला ना रहेगा, कोई ज्योति गन सिमट जाएंगी और लगातार एक ही दिन होगा। लगातार क्या लिखा है अनिल, जल्दी खोल। लगातार, लगातार का मतलब क्या होगा? कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू बहुत बढ़िया बात बोला। कंटिन्यू, इटर्निटी। इटर्निटी मतलब ना खत्म होने वाला दिन, और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। ना तो दिन होगा ना तो रात, परंतु सांझ के समय ये संदेश आपको उजाला दे रहा है। ये ऐसा उजाला वाला संदेश है कि फिर आपकी ज़िंदगी में कभी अंधेरा होने नहीं देगा। और आज आपके संदेश यहीं समाप्त करते हैं। खुदावन आपको आशीष दे, ब्लेसिंग दे, सारी चीज़ों से भरपूरी दे। अगला संदेश 5वां, 6वां, 7वां तूरी बाद में बताएंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।